Can you catch criminals with graphology? Of course, yes. हैंडराइटिंग एनालिसिस से क्या क्या कौन से ट्रेड्स पता चल सकते हैं किसी पर्सन के बारे में? ग्राफोलॉजी के थ्रू, हैंडराइटिंग एनालिसिस, सिग्नेचर एनालिसिस के थ्रू हमें वो सारी चीजें पता चलती है कि जो वो व्यक्ति दिखा रहा है अपने बारे में, कि मैं क्या दिखाना चाहता हूँ दुनिया को, ये समझ में आता है। लेकिन मैं असल में क्या हूँ वो भी समझ। आपकी बातें सुन के लग रहा है कि ग्राफोलॉजी जिसको आती है उसके पास सुपर पावर है। अनिकेत, ये ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो आप कह रहे हो। जो लोग भी मेरे पास सीखने के लिए आते हैं वो यही सोच के आते हैं कि भाई ये सीख लूंगा ना तो ऐसी पावर आएगी सबको समझ में। एक सक्सेसफुल पर्सन की हैंडराइटिंग कैसे दिखती है? When we are looking at the handwriting and the signatures, we see what are the traits that a person has which he or she can use to become more successful. ओके तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर सक्सेसफुल व्यक्ति के राइटिंग में, सिग्नेचर में सेम ही फॉर्मेशन है। एलन मस्क की सिग्नेचर देखिए और वो ऐसी है तो सब लोग ऐसे बनाएंगे तो सब सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं होता है। एलन मस्क भले ही बहुत रिच पर्सन है बट हिज फैमिली लाइफ इज नॉट समथिंग दैट यू वुड वांट टू हैव इन योर पर्सनल लाइफ, राइट? उसके बच्चे जैसे वैसे आप अपने बच्चे नहीं चाहो। हैंडराइटिंग एक कम्युनिकेशन का जरिया है। व्हाई आर यू राइटिंग? बिकॉज यू वांट टू कम्युनिकेट समथिंग दैट यू कैन स्पीक। ओके, तो हैंडराइटिंग इज अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर थॉट्स। आपने आज इधर लिखा है वो 10 साल के बाद, 100 साल के बाद भी कोई पढ़ सकता है। So you do forensic investigation. While investigating any handwriting, did you find anything shocking in any of the cases? Hello, sir. Hello, Good afternoon. good afternoon. Thank you for being on the podcast. It's on. Thank you so much for having me. Okay. So we have talked before that before this. So my first question would be, can you catch criminals with graphology? Of course, yes. So let's start with, what is graphology exactly? Okay. So, graphology is a science of understanding a person's personality from their handwriting and signatures and things like drawings, sketches, doodles that a person can make with their handwriting. So how much what kind of personality we can find out from that? See, handwriting is going to reveal the way you think, the way you believe into things, and the way you behave. So it can reveal about how you would behave in a given situation. So if we are looking at a criminal or a suspect, then we can understand from the handwriting whether that person is habituated to commit a crime, or we can also understand whether that person has committed the said crime. So it may be that a person is a criminal. Generally, he keeps committing crimes, but this crime maybe he has not committed that crime. Okay. So graphology can work at that level. And we can identify whether a person has a criminal tendency and whether that person has committed this specific crime. So it is that accurate and it is used at that level. Okay, but when we start writing from school, we are taught certain type of handwriting. Over the period of time, it changes. Correct. So that it represent कि personality भी change हो रही है. Yes, certainly. So although we were taught the same thing in the school, everybody wrote differently. You could identify your notebook amongst the pile of all the notebooks kept in your class. Yeah. So you could go to your class teacher's table, get your own notebook just by looking at the handwriting on the notebook. Why was that? Because your handwriting was unique in that class. Okay, and everybody had a unique combination of handwriting formations which made their handwriting unique. So although we are taught to write in the same way, we tend to write slightly differently. And there are unique things in your handwriting which makes your handwriting unique just because you have a different mix of personality traits. Everybody will have a different mix of personality traits. Okay. So everybody will have a unique handwriting. The combination of formations would be different. And that makes the person's personality and the handwriting unique every time. Okay. So how do you work in graphology? Let's talk about yourself, your journey, how you get into the graphology. What was the starting? What was graduation and all? So it started as a hobby. Like Okay. you mentioned. It started as a hobby. So I was studying in Pune. I after completing my graduation in Nasik, I did my bachelor's, my graduation in BSc in
microbiology first. Then I Okay. did my BS in chemistry. Mhm. I went to Pune for doing my masters in chemistry. After doing that, I was working in a company called Cipla Mhm. for a while. Then I did my masters in MBA in HR. So Okay. while I was doing that, Mhm. I got this curiosity about handwriting and how it can be used to understand people. Because in human resources, we deal with people, People and behaviors. behavior, Yeah. recruiting people, Yes, yes, of hiring course. people. So I was a bit curious about it, and luckily I came across Mr. Milind Rajore, who's my teacher. Mhm. I studied with him for a long time, and then I pursued this as a career. I pursued this, started using this to understand how we can use this for employee assessments, recruitment analysis. Mhm. So after my MBA, I was working with a company called as Forbes. So there Sorry, I didn't. Forbes Forbes. Marshall. Forbes Yeah. Marshall. Okay. So it's a company in Pune. Yeah. So I was working there. While I was working there, we started using it for understanding whether we can use it to understand people better. Hmm. So we started using it for employee assessments. Recruitment process. Yeah. So we initially I was a HR trainee, Okay. MBA trainee, just a fresher. Mhm. So when they came to know that I can do some handwriting analysis, I had studied graphology. So they asked me to do some analysis. Mhm. So they gave me handwriting samples, and I was doing analysis, and Okay. they found it pretty accurate and useful for making decisions like promotions, assigning work to people, making teams based on their behavior. So it started becoming important in a process of recruitment and employee assessment. So when I had to shift to Nasik, then I got into this. First, I used to come to Nasik and I used to teach Okay. as a hobby. Mhm. So I used to teach graphology here on the weekends, and I used to go back to Pune for my job. But then later on, there was a lot of work, so I had to leave my job and start working. So we used to do employee assessments for companies. Mostly jewelers do this because integrity is a big issue. Okay. People are very crucial, important, and you have to rely on people a lot. And small mistakes by people can also Cause a big loss and all. so in those situations, then companies prefer to get their handwriting analyzed, know people better, and Okay. use those to make decisions. Okay, for recruiting it is being used. So many people don't know this, that they are using this kind of Yes. graphology for recruitment, because why I'm currently pursuing my MBA only. So when we apply for jobs or apply for campus pool placements, we don't think this graphology will anybody will ask, or this will be required. Correct. What should we do to improve this our skills? How can we improve so that high company will hire us? Okay, so see, unlike other tests or maybe like aptitude tests Mhm. or things where you can find a right answer, like Mhm. most of the aptitude tests, it's not about having a right answer to it. It is to understand how you think. Mhm. So similarly, graphology is also to understand your personality. So if you try to fake yourself by making some changes in the handwriting, a graphologist would come to know that you are faking yourself. Okay. Okay. So that is not the approach of learning this as a skill to get through a hiring Hiring process. process. But certainly, when you understand yourself through handwriting, you can understand what are the limiting beliefs that you have. You can understand what are the negative things in your personality, the traits that would be harmful to you when you get into corporate. So you can work on those. Mhm. So and when you work on yourself, it automatically will start reflecting in your handwriting. Okay. And people will even if they don't look at your handwriting, they will come to know when they interact with you. They'll understand that you have those personality traits. So Yeah. handwriting analysis can also be used to change the writing and expect those changes in your personality gradually. Okay. So it's not about faking the handwriting and getting through, but it Mhm. is about changing your handwriting to see those changes happen in yourself. Okay. So you can imbibe those personality traits which are really important for whatever kind of trade that you want to do, whatever kind of job that you want to get into. So let's say what kind of MBA you are doing, what is your specialization? Marketing. Marketing. So Yeah. if you are into marketing, what would be the most important skills that you need to have? I guess communication. Communication skills, right? Yeah. So will it be very important for you if your communication skills and the belief that you have
about people, about your own communication with people, what you are delivering, what people are understanding from it. If this gets better, will it be helpful to you? Of course, Right. 100%. So if you understand that these are some personality traits which you need to work upon, if these are some emotional quotients that you need to improve, then working on it is always going to help you in your job or in your career later on, because in marketing you need to deal with a lot of people. 100%. So actually it is said that marketing people deal with more people than the HR people. Yeah. Okay, so HR people only deal with the policies and all And the sort company of employees rules as and well. regulations and those payments and all those things. But marketing person has to understand the client, has to understand what is going on in the mind of the person. So here there are two things. You can understand yourself, your communication, you can improve it, and you can also look at the handwriting of your client and understand what is going on in that person's mind and Okay. what kind of communication you can do with that person. How can you put up things, whether he is a very logical person or he is a very emotional person, whether there is a lot of there are a lot of doubts in that person's mind. So once you understand those things, you can speak in his language. So what is it that the person wants to hear from you, you can understand by understanding his way of thinking. So there, wherever human intervention or human interactions come in picture, you can use it. So MBA, when you're doing MBA in marketing, you can try to think where human interactions are coming in picture and where my uh, my behavioral skills I need to improve, and there you can use graphology. तो सर, ग्राफोलॉजी थ्रू हम पर्सनालिटी कितने परसेंटेज का पर्सनालिटी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, एक्यूरेसी कितनी है उसके? Okay, so if we have to look at the accuracy, we use this for recruitment of sensitive positions for our clients. We have been doing this for last 2 decades, and they say it's more than 85%. Wow. And that is good enough. You can, जहाँ पे आपको कुछ भी पता नहीं है अननोन व्यक्ति के बारे में, वहाँ पे आपको 85, 90, 95% It is a good percentage, I guess. That's a good thing. बाकी जो मैंने पर्सनालिटी टेस्ट देखे हैं, it is 85 is a very good number. सर, ग्राफोलॉजी थ्रू हैंडराइटिंग एनालिसिस से क्या-क्या कौन से ट्रेड्स पता चल सकते हैं किसी पर्सन के बारे में? तो देखिए, ग्राफोलॉजी के थ्रू, हैंडराइटिंग एनालिसिस, सिग्नेचर एनालिसिस के थ्रू हमें वो सारी चीजें पता चलती है कि जो वो व्यक्ति दिखा रहा है अपने बारे में, ओके, कि मैं क्या दिखाना चाहता हूँ दुनिया को, ये समझ में आता है, लेकिन मैं असल में क्या हूँ वो भी समझ में आता है. ओके, ठीक है. अब इसमें क्या क्या आता है? योर सेक्सुअल ड्राइव्स, योर थिंकिंग अबाउट मनी, योर थिंकिंग अबाउट योर क्लोज रिलेशंस, योर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ. आपका सेल्फ परसेप्शन क्या है, आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, आप दुनिया के बारे में क्या सोचते हो, आपके कॉज इफेक्ट के रिलेशंस आप किस तरह से बनाते हो, आप आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल सोचते हो. ये सारी चीजें समझ में आती है. तो बहुत सारी चीजें हैं कि बहुत बेसिक चीजें जो समझ में आती है, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस यू वुड लाइक टू वेयर, यहाँ से लेके कि व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स यू हैव, व्हाट काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल इंक्लिनेशन यू हैव, यहाँ तक पता चलता है. सेक्सुअल ड्राइव्स पता चलते हैं, whether the person has grudges towards a person, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है क्या समझता है, कुछ सेक्सुअल समझ में आता है कि आप बचपन में कुछ और बनना चाहते थे लेकिन आप कुछ और बन गए हो, तो आपके करियर चॉइसेस समझ में आते हैं. ओके, ये भी समझ में आता है कि आप कितना काम बोलते हो कि मैं करूंगा और कितना करते हो. ये भी समझ में आता है कि आप खुद के लिए क्या कमिट करते हो कि मैं आज से ये नहीं करूंगा, और वो कितना उस पे आप टिके रहते हो. So there are a lot of things that we understand. So basically what we are looking at the handwriting is your self talk. आप खुद के साथ क्या बात करते हो, okay, और उस पे आप कितने खरे उतरते हो, ये सब समझ में आता है. So whatever goes on in your mind, the programming that you have in your mind, what makes you think in a specific way, ये सारी चीजें समझते हो. आपका पैसे के बारे में सोचना क्या है, आपका शादी के बारे में सोचना क्या है, आपका बच्चों के बारे में सोचना क्या है, ये सब समझ में आता है. And the interesting thing is there are a lot of things that we have already decided about ourselves. Okay, तो यानी like जैसे कि शादी के बाद में आप, यानी अभी आपकी शादी तो नहीं है, नहीं, लेकिन मेरी बीवी कैसी होगी, हाँ, मेरी मैरिड लाइफ कैसे होगी,
ये आपका बहुत पहले से उसके बारे में कुछ ना कुछ तो ख्याल रहता है, बचपन से तो ये तो सोचते हैं हम, ऐसे तो नहीं होता ना कि शादी के बाद सोचेंगे। नहीं नहीं। सो दीज आर द थॉट्स दैट यू ऑलरेडी हैव। ओके। तो ये जो आपका थिंकिंग है ना, ये कहीं पे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, तो ये भी उसमें रिफ्लेक्ट होता है। एंड दीज थिंग्स largely contribute to what is going to happen in your married life, in your relations at workplace. ये बहुत contribute करता है because this is something that you have carried in your past. तो ये ऐसी चीजें समझ में आती है कि जिससे आप अभी तक expose नहीं हुए। Now this can be specifically used like जैसे मैंने कहा कि employee assessments में use किया जाता है, marital counseling में use किया जा सकता है, how two people can whether they can live together happily, whether they will be able to accommodate each other, ये चीजें समझ में आ सकती है। जैसे जॉब पे किसी को आप रखने की कोशिश कर रहे हो तो उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो वो हैंडल कर पाएगा क्या, ये आपको समझता है। अब वो व्यक्ति उस सिचुएशन में अभी तक तो गया नहीं है, यू आर गोइंग टू प्रमोट दैट पर्सन विद अ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप तो उसका हिस्ट्री या तो उसका बैकग्राउंड चेकिंग करके ये नहीं समझेगा। तो व्हाट आर द वेज टू अंडरस्टैंड दिस? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड whether this person will be able to handle that situation correctly, what are the programs that the person already has, okay, how he thinks about that situation, how he thinks about himself as a leader, whether he will be able to handle people, whether he will be able to handle the relations with his colleagues. तो ये सब आपका प्रोग्रामिंग पहले से हो चुका है, बस आप उस सिचुएशन में जाते हो तो आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो। okay. तो हम वो व्यक्ति कैसे बिहेव करेगा ये समझने के लिए उसका ये जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है वही समझने की कोशिश करें। तो आपको अगर वो पकड़ में आ गया तो आप उसको जिस सिचुएशन में डालेंगे तो वो कैसा बिहेव करेगा वो आप ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं। ग्रेट सर, आपकी बातें सुन के लग रहा है कि ग्राफोलॉजी जिसको आती है उसके पास सुपर पावर है, क्योंकि हर कोई चाहता है एग्जैक्टली क्योंकि हर कोई चाहता है कि सामने वाले पर्सनालिटी के बारे में अपने को पता हो। वी वांट सम एज अहेड ऑफ हिम सम वे। हम चाहते हैं कि वो सामने वाला पर्सन क्या सोच रहा है, क्या अंडरस्टैंड कर रहा है, उसके ह्यूमन बिहेवियर्स क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, सामने वाले बंदे को पहले समझाना और उसकी बात समझना, वो क्या करना चाहता है। इफ इट इज काइंड ऑफ सुपर पावर, दैट इज द सिंपलेस्ट वे आई कैन डिफाइन इट। तो अनिकेत ये ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो आप कह रहे हो। जो लोग भी मेरे पास सीखने के लिए आते हैं वो यही सोच के आते हैं कि भाई ये सीख लूंगा ना तो ऐसी पावर आएगी सबको समझ में। एग्जैक्टली। बट आई विल टेल यू द इंटरेस्टिंग पार्ट, बाय द टाइम यू बिकम अ ग्राफोलॉजिस्ट आप बोलते हो दुनिया का जाने तो मुझे पहले खुद को समझना है। तो दिस इज लाइक अ वेरी आई वुड से दैट दिस इज अ स्पिरिचुअल ट्रिप दैट यू टेक व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ फ्रॉम हैंडराइटिंग। आपको आपके अंदर ही इतनी सारी चीजें दिखती है कि आप भूल जाते हो कि दूसरे के बारे में समझना है। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज द मोर यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड योर स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दूसरे को समझ पाते हो कि नहीं। जब आप खुद को समझ जाते हो अच्छे से, आपको पता है कि आप क्लियर हो कि आपको क्या कम्युनिकेट करना है, आप क्लियर हो कि सामने वाला जो कह रहा है उसका इम्पैक्ट आपके इमोशनली क्या हो रहा है, वेदर यू आर गेटिंग ट्रिगर्ड, वेदर यू आर गेटिंग इमोशनली स्वेड अवे, वेदर यू आर बिकमिंग इंपल्सिव, ये आपको जब समझ में आने लगता है तो आपका सेल्फ अवेयरनेस इतना बढ़ जाता है कि आपका कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली लैंड होता है सामने वाले। So it's more of understanding yourself, but again it starts with that curiosity of knowing people around us. 100%। हम लोग चाहते हैं कि सामने वाले जो भी फ्रेंड है या फिर इवन वी हैव अ क्रश ऑन समवन, इफ वी आर वांट टू डू समथिंग, सो वो जानना बहुत जरूरी है। सबको क्यूरियोसिटी रहती है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सर और कहाँ ये हैंड राइटिंग एनालिसिस यूज कर सकते हैं, किस किस बिजनेसेस में, किस किस डिफरेंट डोमेन्स में यूज कर सकते हैं? सो जैसे हमने पहले डिस्कस किया, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जैसे यूज किया जाता है, मैरिटल काउंसलिंग के लिए यूज किया जाता है। सो इनिशियली हमने बात की कि एक व्यक्ति अपने बारे में जब सोच रहा है पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, हाउ आई कैन इंप्रूव माई सेल्फ, तो एक इंडिविजुअल की बात हो रही थी। फिर मैरिटल काउंसलिंग की जब हमने बात की, प्री मैरिटल पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग, उसमें दो लोग साथ में आएंगे तो जो ह्यूमन इंटरेक्शन होगा जो, तो उसके बारे में हम दो लोगों के बारे में बात करें। सो सिमिलरली जैसे हम कपल की बात कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन businesses where two people coming together to do a business. So this can be used in schooling, parenting, counseling. यहाँ पे use किया जाता है. Employee assessments, I already told you, you can use it in employee assessment. One interesting area where this can be used is, this becomes very handy and useful tool for wellness and health and wellness practitioners, health coaches, doctors, homeopaths. A lot of homeopaths learn this. They use this because homeopathy is based on a lot of emotions, understanding of emotions. So इसका diagnostic value बहुत अच्छा है ग्राफोलॉजी का. It can be used for diagnosis.
Interestingly, there are a lot of things that can be understood from handwriting. किसी को लो Okay. बैक पेन है, जॉइंट पेन्स है, अपर बैक पेन है, इंसोम्निया है, यहाँ तक कि गायनेक इश्यूज है, कैंसर रिलेटेड थिंग्स है, थायराइडिज्म है, थायराइड के इश्यूज है, ये सारी चीजें साइकोसोमैटिक जब होती है ये समझ में आती है. कार्डियक प्रॉब्लम्स, यानी बहुत बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर कहते हैं कि इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेशेंट कहता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम कुछ लग रहा है. हाँ. तकलीफ हो रही है, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं. तो ये साइकोलॉजिकल होता है, उनकी वे ऑफ थिंकिंग की वजह से, स्ट्रेस लेने की वजह से होता है. तो हमें वी आर नॉट वर्किंग ऑन द हेल्थ कंडीशन, बट वी आर वर्किंग ऑन दैट stressor that the person is having. So what is the source of the stress, what is the way of thinking that the person has which is creating the stress, which is causing the health problem. तो हम उस चीज पे काम कर सकते हैं, बिकॉज ये इमोशंस है जो इम्पैक्ट कर रहे एट द एंड आपके हेल्थ को. तो उन चीजों पे बहुत अच्छे से काम किया जाता है. Yes, and health, stress is one of the most जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज बहुत सारे होते हैं. स्ट्रेस, मेरा क्वेश्चन था सर कि अगर इसके इतने अच्छे एप्लीकेशंस हैं, इतना यूजफुल है, तो व्हाई इट इज नॉट दैट मच इम्प्लीमेंटेड? इट इज इम्प्लीमेंटेड, इट इज Okay. बीइंग यूज्ड अ लॉट. क्या होता है कि इसको एक तो बहुत साइंटिफिकली यूज नहीं किया जाता है. People, when they come to know that we understand so many things, they would try to find out things which are not very scientifically studied. So people would try to mix it up with something like astrology. They would try to combine it with Vastu Shastra or something which is generally called as occult or pseudoscience. So ये practice जब करते हैं लोग, तो उसमें science में काम करने वाले लोगों का trust नहीं रहता है. Okay. I, coming from a science background, I have studied a little bit of science. मेरा थोड़ा रिसर्च का भी बैकग्राउंड है. तो आई बिलीव दैट दिस शुड बी यूज्ड टू द एक्सटेंट दैट वी कैन यूज वेरी कॉन्फिडेंटली. जहां पे भी आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, वहां पे इसका यूज नहीं किया जाना चाहिए. Okay. तो जब तक आप लिमिटेशन समझ के काम करते हो, किसी भी साइंस का लिमिटेशन समझते हो कि इससे हम क्या जान सकते हैं और क्या नहीं जान सकते, Got it. तो आप उसका अच्छे से यूज कर सकते हैं. अगर आप उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन कर रहे हो जिसको कोई बेस नहीं है, आपके ऑब्जर्वेशंस का बेस बहुत कम है, लाइक इफ आई जस्ट लुक एट लेट्स से 500 हैंडराइटिंग सैंपल्स ऑफ सम पेशेंट्स एंड अराइव एट अ कंक्लूजन कि ये राइटिंग में होगा तो ये बीमारी होती है, तो मेरा स्टडी जो है बहुत लिमिटेड है. तो ये बहुत लोग करते हैं जिसकी वजह से वो साइंटिफिक नहीं माना जाता है. Okay. Okay. तो ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है उसका, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन काफी है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु लर्न दिस एंड इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स बेस्ड ऑन वेरी सिंपल लॉजिक्स. तो ये काफी लोग यूज करते हैं पर्सनल इम्प्रूवमेंट के लिए और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए. इसका बहुत सारा यूज हो रहा है आजकल. तो सर, एक सक्सेसफुल पर्सन की हैंडराइटिंग कैसे दिखती है? दिस इज अ वेरी जनरल थिंग. ओके, सो एक तो सक्सेस का हर एक का अपना अपना Definition होता है. ओके, लेकिन गोइंग बाय अ वेरी जनरल डेफिनेशन, लाइक a few people that would come to your mind, जिसको आप सक्सेसफुल बोलते हैं, तो हर एक का सक्सेस अलग अलग रीजन से हो सकता है. Okay. किसी का विजन अच्छा होगा, तो किसी का फास्ट थिंकिंग, फास्ट इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो किसी का लीडरशिप अच्छा होगा, किसी का पीपल स्किल्स अच्छा होगा. तो हर एक का सक्सेस का रीजन अलग होगा. So what we see is, when we are looking at the handwriting and the signatures, we see what are the traits that a person has which he or she can use to become more successful. Okay. तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर सक्सेसफुल व्यक्ति के राइटिंग में, सिग्नेचर में सेम ही फॉर्मेशन होगा. तो ये बहुत मिसकंसेप्शन एक जनरल होता है जो व्हाट्सएप और इधर उधर लोग फैलादर करते हैं. कुछ हद तक वो ठीक भी होता है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड होता है कि किसी व्यक्ति के राइटिंग में कुछ फॉर्मेशन है तो सब लोग वैसा करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे. एलन मस्क की सिग्नेचर देखिए और वो ऐसी है तो सब लोग ऐसे बनाएंगे तो सब सक्सेसफुल होंगे, ऐसे नहीं होता है. ओके, सो सक्सेस ट्रेट्स फॉर्मेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं. ओके, सो एलन मस्क भले ही बहुत रिच पर्सन है, बट हिज फैमिली लाइफ इज नॉट समथिंग दैट यू वांट टू हैव इन योर पर्सनल लाइफ, राइट? उसके बच्चे जैसे वैसे आप अपने बच्चे नहीं चाहोगे. तो सक्सेस आप किस चीज को कहते हो उस पर डिपेंड करता है कि हैंडराइटिंग में कैसे दिखेगा. बट कुछ जनरल ट्रेट्स होते हैं कि जो हम देखते हैं. मैं वही पूछना, कुछ कॉमन ट्रेट्स जो तो कुछ कॉमन ट्रेट्स क्या है कि बहुत
सिंपल सी चीजें है कि अगर वो जल्दी जल्दी में कोई अगर मुझे पूछता है कि सिग्नेचर कैसे होना चाहिए, तो फर्स्ट थिंग इज द सिग्नेचर हैज टू बी लेजिबल। ओके, तो हैंडराइटिंग सिग्नेचर लेजिबल होना बहुत जरूरी है। लेजिबल का मतलब कोई भी जिसको पता नहीं कि आपका नाम क्या है, आपका सरनेम क्या है, वो आपका सिग्नेचर पढ़ पाए बिना बताए। जिसको इंग्लिश आती है और आपने इंग्लिश में साइन किया तो उसको पढ़ने को आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। दिस इज लेजिबिलिटी का टेस्ट। तो लेजिबल अगर आपका हैंडराइटिंग सिग्नेचर है तो आपका सक्सेस जहां पे भी आप हो, जिस लेवल पे हो, वहां पे आपका सक्सेस बहुत आसानी से हो सकता है। इसका रीजन क्या है कि नाउअडेज पीपल डोंट हैव टाइम टू अंडरस्टैंड यू। किसी को इतना वक्त नहीं है आपको समझने का। तो आप जितना क्लैरिटी रखेंगे उतना लोगों को आप जल्दी समझा पाएंगे कि आप क्या चाहते हो, आपका थिंकिंग क्या है। तो वो लेजिबिलिटी आपके राइटिंग में रहेगी तो अपने आप आपका सक्सेस बहुत जल्दी हो सकता है। ओके, क्योंकि क्या है, हैंडराइटिंग क्या है, हैंडराइटिंग एक कम्युनिकेशन का जरिया है। व्हाई आर यू राइटिंग? बिकॉज यू वांट टू कम्युनिकेट समथिंग दैट यू कैन स्पीक। ओके, तो हैंडराइटिंग इज अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर थॉट्स। आपने आज इधर लिखा है, वो 10 साल के बाद, 100 साल के बाद भी कोई पढ़ सकता है। ओके, आपने यहाँ लिखा है, आपने वो लेटर किसी और देश में भेजा तो वहां पे भी वो पढ़ सकते। तो ये कम्युनिकेशन का जरिया है। तो कम्युनिकेशन आप अगर कर रहे हो और आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो यही नहीं समझ रहा है, तो देयर इज फेलियर ऑफ द कम्युनिकेशन इटसेल्फ। तो वो पहला साइन है सक्सेस का कि आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो वो पहुंच रहा है। अगर उसमें लेजिबिलिटी, क्लैरिटी है तो आपका सक्सेस सस्टेनेबल हो। इलेजिबल राइटिंग वाले बहुत से लोग मुझे पूछते कि बहुत से तो सक्सेसफुल लोग हैं जिनका सिग्नेचर समझ में ही नहीं आता। एग्जैक्टली, मैं भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि काफी लोग तो ऐसे ऐसे कर कुछ कर देते हैं, जस्ट लाइन ही देते हैं उनकी। करेक्ट, और वो सक्सेसफुल भी होते हैं। एग्जैक्टली। तो हमारे मन में आता है कि फिर वो सक्सेसफुल कैसा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि ओवरऑल सक्सेस है, सस्टेनेबल सक्सेस है, कि उसके साथ ही वो सक्सेस खत्म हो रहा है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर कंसिडर्ड टू बी वेरी सक्सेसफुल, लेकिन उनके बाद में वो सक्सेस फैमिली में नहीं दिखता है। वो एक एरिया में सक्सेसफुल होते हैं, बाकी के एरियाज में उतने सक्सेसफुल नहीं होते। मे बी फाइनेंसेस में बहुत अच्छे हैं तो रिलेशंस में अच्छे नहीं है, मे बी हेल्थ में अच्छे नहीं है, कहीं ना कहीं पे तो इश्यूज होते हैं कुछ ना कुछ। तो एक जनरल सक्सेस अगर देखना है सारे एरियाज में, ओवरऑल अगर सक्सेस के लिए, अगर वेलबींग के लिए आप सोच रहे हो, तो आपका सिग्नेचर हैंडराइटिंग जितना ज्यादा लेजिबल होगा उतना आपका सक्सेस बहुत इजीली ज्यादा हो सकता है। That's one common thing that I can suggest or to audience कि आप अगर सक्सेस के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपका सिग्नेचर हैंडराइटिंग लेजिबल बनाइए। अगर इफ यू वांट एनी किसी की आप सिग्नेचर एनालाइज करना चाहोगे फ्रॉम हिस्ट्री, व्हिच वुड यू लाइक टू एनालाइज उनकी हैंडराइटिंग या फिर सिग्नेचर्स? या तो ये एक बहुत इसका इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है कि यू कैन नॉट जस्ट understand your partner or your children, you can also understand your ancestors. Okay, wow. So you can, if you find a diary written by your great grandfather or something, you can understand actually कि वो कैसे थे, क्या सोचते थे, किस तरह का thinking था. So a lot of people come to me with their old diaries or some documents that they find at their homes. किधर तो अटैची में मिल जाता है, तो लेके आते हैं कि ये शायद हमारे दादाजी का है, ये शायद हमारे नानी का है, तो कैसे व्यक्ति थी वो, ये समझने के लिए उसका यूज होता है। हिस्ट्री के भी बहुत सारे लोगों को समझने में इसका यूज होता है। जैसे बहुत सारे मिस्टीरियस लोग होते हैं, जैसे हिटलर, मुसोलिनी, बहुत सारे ये लोग हैं ना जिनके बारे में हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं कि सच में ऐसा क्यों हुआ, क्या किया, क्या माइंडसेट था। 100% करेक्ट। तो ये सारी चीजें आप उनके बारे में और अच्छे से समझ सकते हो। और बहुत सारे सिचुएशन में ऐसा होता है कि कुछ लोगों को लगता है कि इनका सुसाइड हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ कॉन्स्पिरेसी थी, इनको मार डाला गया है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे पर्सनालिटीज के बारे में आप जब हैंडराइटिंग सिग्नेचर्स का स्टडी करते हो तो आपको एक्चुअल फैक्ट समझ में आते कि ये कितना ट्रूथ है इसमें। सो केसेस लाइक सुशांत सिंह राजपूत, व्हिच वाज अ मिस्ट्री, हिज डेथ इज अ मिस्ट्री, हिटलर्स डेथ इज अ मिस्ट्री। sometimes there are some interesting signatures like आप लादेन की सिग्नेचर देखो, ओसामा बिन लादेन की सिग्नेचर, whether that person is living, existing or is somebody from a past, आपको ये सारी चीजें समझ सकती है। अगेन अब आपने किसी एक हिस्टोरियन के बारे में या फिर उनकी हैंडराइटिंग पढ़ी है और उनके बारे में आपने जाना है, कोई ऐसा हिस्टोरियन के बारे में बताएंगे आप? A personality from history, right? So something that would relate to most of the Indians, शिवाजी महाराज, उनकी हैंडराइटिंग के कुछ लेटर्स हैं उनके हैंडराइटिंग में, खुद उन्होंने लिखे हुए हैं, तो वो मोड़ी लिपि में है। Now interestingly, graphology is not limited to English or
मराठी और समथिंग. सो ग्राफोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ डॉट लाइन कर्व्स एंड लूप्स. तो वाह. आपकी राइटिंग पूरी डॉट लाइन कर्व्स लूप से ही बनी होती है. हम्म. उसमें वही 4 इंग्रेडिएंट्स है जो घुमा फिरा के उसका ही मसाला चेंज करके वही डिश बनती रहती है. तो कोई भी स्क्रिप्ट ले लो आप, उसमें यही 4 चीजें. उसी वजह से हम मोड़ी लिपि का भी स्टडी कर सकते हैं. ओके. सो इंटरेस्टिंगली कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे देखने को मिले, कुछ स्क्रिप्चर्स मुझे देखने को मिले जिसमें शिवाजी महाराज के ओरिजिनल राइटिंग्स है, वो नेट पे भी अवेलेबल है. रामदास स्वामी समर्थ है महाराष्ट्र से, जिनके हैंडराइटिंग सैंपल्स अवेलेबल है, उनके बारे में समझ में आता है. लीडरशिप क्वालिटी, टीम टीम बिल्डिंग स्किल, ये बहुत प्रोमिनेंट दिखता है. तो टीम बिल्डिंग स्किल उनका बहुत ज्यादा अच्छा है. ये उनके वर्ड स्पेसिंग्स में वगैरह बहुत अच्छे से समझ में आता है. तो जो हम पढ़ते हैं उनके बारे में, वो वाकई में उनके राइटिंग में भी दिख के आता है. तो इट्स नॉट लाइक कि इट्स अ मेड अप स्टोरी अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ बिग रूलर, बट इट इज एक्चुअली द फैक्ट्स दैट वी हैव हर्ड इन हिस्ट्री कि वो वैसे ही थे. जब मैंने आपको ये हिस्टोरियन के बारे में क्वेश्चन पूछा, जैसे मेरा कंप्लीट हुआ, मेरे दिमाग में आया कि मैं किन हिस्टोरियन पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहूंगा. एंड अगेन द नेम वाज सेम, छत्रपति शिवाजी महाराज. उनके बारे में आपने बहुत बता दिया. थैंक यू सो मच. तो सर, इसके बहुत सारे ग्राफोलॉजी के काफी अच्छे एप्लीकेशंस है. सो क्या ये क्रिमिनोलॉजी में भी यूज करते हैं? हाँ, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में इसका यूज होता है. So many times when the investigators come at a situation where they are stuck and they have no clues about who might have been committed a crime, and they don't want to use something like third degree, or they don't want to reveal that they are investigating. तो ऐसे समय में handwriting analysis का बहुत अच्छे से use हो सकता है. We take handwriting samples of all the suspects or people who were there around at the crime scene, and we try to understand their personality, whether they have that criminal tendency, whether they have the capacity and the motive to commit that kind of crime. ये समझ में आ सकता है. तो इसका यूज काफी जगह पे होता है. थेफ्ट में होता है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स करने की कैपेसिटी किसी की है क्या, ये समझ में आता है. मर्डर करने के लिए उसके पास सफिशिएंट रीजन या मोटिव है क्या, उसके वैसे ग्रजेस है, या तो उसका वैसा साइकोपैथिक बिहेवियर है. तो वो राइटिंग से समझ में आ सकता है. So it becomes very handy. It gives you a clue, and then investigation can proceed from there. So जहाँ पे आपको कुछ भी clue नहीं मिल रहा है, वहाँ पे handwriting analysis can give you a very distinct clue and point towards a specific person with reasoning why we feel that this person might be involved in the crime. Many times ऐसे भी हमें experience हुआ है कि we don't find the actual criminal there because maybe he is not in the suspect list of the investigators, but we find somebody who has the information about the crime. Okay. तो वो भी उनके राइटिंग से पता चलता है कि आप इंफॉर्मेशन छुपा रहे हो. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू हो जाता है फॉर द इन्वेस्टिगेशन. सो इफ यू फाइंड समबडी हु इज हाइडिंग सम इंफॉर्मेशन, knows something that can be helpful in crime investigation, तो वो व्यक्ति भी मिल जाता है आपको. तो from there also you can continue your investigation and then reach to the suspect. If someone is feared or hiding something, क्या उसकी हैंडराइटिंग मतलब कैसे डिफरेंट होती है नॉर्मल हैंडराइटिंग से? उसकी नॉर्मल हैंडराइटिंग से क्या थोड़ी कुछ चीजें डिफरेंट रहेगी? सो देखिए क्या होता है कि फोरेंसिक्स में हम जो देखते हैं कि जहाँ पे भी दो चीजों का फ्रिक्शन होता है, तो वो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट एक दूसरे पे छोड़ता है. जैसे दो कार्स अगर हिट करती है एक दूसरे पे, एक्सीडेंट होता है, बैंग, तो इस कार का पेंट उस कार को लग जाएगा, इस कार का कुछ ना कुछ मेटल पेंट कुछ ना कुछ ट्रांसफर होगा. तो देयर इज ऑलवेज अ ट्रांसफर ऑफ सम मटेरियल फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर व्हिच कम्स इन कांटेक्ट. तो ये बेसिक प्रिंसिपल है फोरेंसिक्स का. तो यहाँ पे फिर हैंडराइटिंग एनालिसिस में क्या हो रहा है कि द कॉन्शियस एंड द सबकॉन्शियस माइंड इज कॉन्फ्लिक्टिंग विद ईच अदर. Okay. So let me give you an example. Like there are 10 suspects. Okay, कि 10 लोगों में से एक ने किसी ने क्राइम किया, और वो एक जो हो वो आप हो, ठीक है. Okay. और आप सबको हमने कुछ लिखने के लिए कहा है. Okay. और आप लिखते हो उस सिचुएशन के बारे में, वो क्राइम कब हुआ, आप कहाँ थे. अब जब आप ये लिख रहे हो तो ये 10 लोग जब लिख रहे हैं उनमें से 9 लोग जो है वो सच्चाई लिख रहे हैं, और एक व्यक्ति जो है वो झूठ लिख रहा है. और आप जब झूठ लिख रहे हो तो आपका दिमाग ज्यादा प्रोसेस हो रहा है. Okay. तो आप एक्चुअली वो भी
रिकलेक्ट कर रहे हो कि जो असल में हुआ था, हम्म, और आप वो भी प्रोसेस करके क्रिएट कर रहे हो जो नहीं हुआ था लेकिन आपको लिखना है। ओके, बाकी के लोग वो नहीं कर रहे हैं, बाकी के लोग जो हुआ था वो लिख रहे हैं। हम्म, आप वो सोच रहे हो कि क्या असल में हुआ था, हम्म, और आप वो लिख रहे हो कि जो नहीं हुआ था, तो आपका प्रोसेसिंग ज्यादा हो रहा है, हम्म, तो वो हैंडराइटिंग में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, सी हैंडराइटिंग इज जस्ट लाइक बॉडी लैंग्वेज। हम्म, सो सिंस यू आर डूइंग एमबीए हम्म, एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स वगैरह ये आप सीखते होंगे, प्रोक्सेमिक्स, बॉडी लैंग्वेज ये बॉडी सीखते होंगे। लैंग्वेज, आई कांटेक्ट एंड एवरीथिंग, हाँ, तो तो वही ये है। सब जेस्चर्स, पोस्चर्स, इसमें से जो आप सीखते हो ना कि कैसे आपको समझ में आता है हम्म, व्यक्ति के बारे में। तो क्या हो रहा है, मैं बात एक कर रहा हूँ, हम्म, लेकिन द वे आई एम स्पीकिंग, द काइंड ऑफ आई कॉन्टेक्ट आई एम हैविंग, हम्म, द पोस्चर दैट आई एम हैविंग, द जेस्चर्स दैट आई एम डूइंग विद माय हैंड्स, माय बॉडी, माय शोल्डर्स, इससे आपको कुछ ना कुछ ज्यादा समझ में आ रहा है। हम्म, आपको ये समझ रहा है कि ये कितना सीरियस है इन बातों के बारे में। ओके, whether I am speaking the truth or whether I am hiding, you will come to know from my body language rather than my words. ओके, सिमिलरली जब मैं लिख रहा हूँ तो उसका कंटेंट एक बात कर रहा है लेकिन उसके फॉर्मेशन कुछ और बात कर रहा है। सो हैंड राइटिंग इज जस्ट लाइक द बॉडी लैंग्वेज। तो हैंड राइटिंग का कंटेंट एक बात कर रहा है लेकिन उसका फॉर्मेशन बता रहा है कि ये झूठ बोल ओके, बट जैसे प्रैक्टिस कर करके किसी की बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो जाती है, रहा है। एक और चीज आती है लाई डिटेक्टर्स, बाकी टेस्ट होते हैं, सो कुछ कुछ लोग उसको भी क्रैक कर लेते हैं बिकॉज दे हैव प्रैक्टिस देमसेल्फ दैट गुड, करेक्ट, करेक्ट। मेंटालिटी इतनी वो लगते कि दे डिफर हम्म, इन रियलिटी एंड व्हाट इज फेक। सो क्या ऐसा ऐसा होता है कि, हाँ, और ऐसा कोई केस आपको याद है जो बहुत सारे केसेस है कि जहाँ पे इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट? हाँ, इसको हम ना गोल्डन आवर्स कहते हैं। हम्म, गोल्डन आवर्स आर द फर्स्ट इनिशियल 4 to 5 hours हम्म, आफ्टर द क्राइम हैज हैपेंड। आपने एक क्राइम कमिट किया है, हम्म, और वहां से आगे के 4-5 घंटों में हम्म, यू हैव यू हैव नॉट क्रिएटेड एनी स्टोरी हम्म, कि अगर मुझे कोई पूछेगा कि हम्म, मैं कहाँ था, हम्म, तो ये आपने अभी तक स्ट्रक्चर नहीं किया है। हम्म, तो वो गोल्डन आवर्स में ना आप झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे। ओके, बट 1 साल के बाद में अगर आपको पूछूंगा और मेरे पहले 100 लोग आपको पूछ चुके हैं और आपने 100 बार झूठ कहा है, हम्म, so now what happens is you have also started believing in that हम्म, false story. हम्म, You believe it in it so much that it is very easy for you to fake it. हम्म, तो वो उतना डिफिकल्ट होता जाता है। इसीलिए कोई भी नार्को टेस्ट हो, लाई डिटेक्टर टेस्ट हो, या हैंड राइटिंग एनालिसिस पता करने की कोशिश हो, वो अगर गोल्डन आवर्स के बाद में आप करते जाओगे तो वो उतना डिफिकल्ट होता जाएगा समझने के लिए। लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ तो ट्रेड छोड़ेगा जिससे समझ में आ सकता है। इट इज ओनली अबाउट वेदर वी कैन अंडरस्टैंड इट, हम वो समझ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो क्लू छूटेगा उसमें। बिकॉज कितना भी कम हो वो फ्रिक्शन हो रहा है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में। बिकॉज उसने अपने आप को कितनी भी स्टोरी बताई होगी कि मैं वहां पे नहीं था, दरअसल में कहीं और था, सच्चाई में मैंने ये क्राइम किया ही नहीं है, वो कितना भी मैं अपने आप को बताऊं, देयर स्टिल इज अ फैक्ट दैट आई हैव कमिटेड द क्राइम एंड आई नो इट। तो वो कहीं ना कहीं पे तो रिफ्लेक्ट होता है। इट्स ओनली दैट इट बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज द पर्सन हैज कन्विंस्ड हिमसेल्फ दैट ही हैज नॉट कमिटेड दैट क्राइम। हम्म, तो ये जितना डिले आप करेंगे उतना वो अपनी स्टोरी बना के अपने आप को समझाता है, और वो आपको समझना डिफिकल्ट होता जाता है। बट इट इज नॉट दैट द क्राइम डजंट हैव एनी एविडेंसेस, देयर आर नो ट्रेल्स, इट्स ओनली दैट द ट्रेल्स आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, सो क्या दिस ग्राफोलॉजी वर्क्स ऑन मेंटल पेशेंट्स? See, a graphologist who's not trained to work with psychiatric cases, not trained as in he's not a doctor, we recommend that you don't work in that field. Of course, people who are trained to handle psychiatric cases, um extreme cases, mental cases, they of course learn this and they implement it, they use it with their already Understanding and skills learning. that they have. But a general graphologist, we recommend that you don't get into things which you are not certified or you're not trained to handle. बट ऑफ कोर्स ये सारी चीजें दिखती है हैंड राइटिंग में, जो हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में ऑफ कोर्स यूज करते हैं कि क्या उसको कोई डिसऑर्डर है, क्या उसका एक एक्सट्रीम वे ऑफ थिंकिंग है, क्या वो साइकोपैथिक है, नार्सिसिस्टिक है, कुछ मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के कुछ ट्रेड्स उसमें दिखते हैं क्या। लेकिन ये हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए नहीं यूज करते। सी इन्वेस्टिगेशन क्लूज फाइंड आउट करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन में यूज की हुई चीज ये फाइनल चीज नहीं है, ये कोर्ट में हमेशा ही स्टैंड होगा ऐसा जरूरी नहीं। But it gives you a clue that maybe there is a possibility that a person is having such a kind of grudge or a traumatic past. Because of that, he has some motive or a reason to commit this crime. ये clue मिल सकता है।
तो ये क्लू मिलने के बाद आप इन्वेस्टिगेशन में उसका यूज कर सकते हो, बट दैट माइट नॉट स्टैंड इन द कोर्ट्स एंड दिस शुड नॉट बी यूज्ड इन साइलो और बाय इटसेल्फ फॉर डिसाइडिंग वेदर अ पर्सन हैज अ साइकेट्रिक प्रॉब्लम। Yeah. तो वहां पे यूज नहीं करते, लेकिन दिख के आता है, बहुत कॉमनली दिख के आता है। पूरे सब लोगों को हमने इन्वेस्टिगेट किया कि ये है ये है ये है क्या, उन्होंने कोई नहीं था, समझ में नहीं आ रहा है। और जिसको मारा था वही एक्चुअली क्रिमिनल था, तो ही वाज द माइंड बिहाइंड द, ही वाज द जिसने वो पूरा प्लॉट क्रिएट किया था कि उसी को आके किसी ने मारा है और किसी ने उसके हाथों में से वो जेवर वगैरह चुरा लिए। तो ऐसे बहुत से केसेस मुझे देखने को मिले। सो फॉर्चुनेटली व्हेन आई वाज वर्किंग विद मिस्टर मिलिंद राजोरे, मेरे जो गुरु है, उनके पास भी मैं जब काम कर रहा था तो मुझे फोरेंसिक के कुछ केसेस पे काम करने को मिला। तो वो एक मेरा क्यूरियोसिटी तब से ही था कि इन्वेस्टिगेशन में काम करूं। बाद में मैंने फोरेंसिक्स के स्टडीज किए, सो आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन फोरेंसिक साइंसेज एंड रिलेटेड लॉज फ्रॉम द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, आई गॉट सर्टिफाइड। तो फिर मैं उसमें फुल टाइम ही उसमें अभी काम करता हूँ। बट इवन फ्रॉम द बिगिनिंग आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू गेट टू सी सच शॉकिंग केसेस, बहुत सारे सुसाइड नोट्स, बहुत सारे विल्स, जिसमें विल्स भी बहुत शॉकिंग होते हैं कभी कभी कि किसी ने विल लिखा है और जो बहुत एक्सपेक्ट करते थे कि वसीयत में हमारा नाम रहेगा, उनका और नाम उनके ही नहीं नाम ही नहीं है। तो ये बहुत शॉकिंग होता है। एंड पीपल कम टू मी विद दोज विल्स सेइंग दैट कि वी वांट टू कंटेस्ट दिस विल, कि ये विल नकली है, ये विल झूठा है। एंड अनफॉर्चुनेटली वो विल जेन्युइन होता है। तो ऐसे उन लोगों के लिए वो बहुत शॉकिंग होता है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट सच थिंग्स। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि बहुत शॉकिंग होते हैं। Suicides are the most. What hobbies do you have? Hobbies, if you say that, I like to read books. I read a lot of books. I like to talk to people, interact with people, understand their businesses. So I'm a part of a lot of networking organizations also. So I get to meet a lot of people, and that I enjoy that. And maybe because I'm in this profession, I get to meet a lot of people and understand people. I like to interact more with youngsters who are aspiring to do something in their life and help people who are successful to be even more successful. So that also gives me an opportunity to learn from them uh, and progress in my life. So it's a balance of my profession and my hobbies. Personal life, of course. Sir, I would like to know what is the, of course, we talked about graphology and everyone, and you are the expert. So kind of, we can say you have a superpower. So, so what is the one thing that many people don't know about you, around you? See, I would say that the superpower that you see in graphology of understanding people. I would like to mention your book. So Yes. So hobbies का question इसीलिए था actually. Yeah. So because I like to read books, and I got an opportunity to write a book with a very renowned author. Okay. Achyut Godbole is a very renowned Marathi author. He has written more than 60 books now. Wow. So his 57th book was my first co-authored book with him, and I'm very happy. At this moment, we have already, in the period of 1 month, we've already exhausted with the copies. The first edition is completely exhausted. Wow. We are printing the second edition of the book now. Amazing. So Congratulations on that. Thank you so much. So what is the book about? So it is about forensics and criminal psychology. So it's about the tools, techniques, the development, the history of all such interesting things, like how poisons were invented, how forensics for identifying poisons, or DNA testing, blood group testing, and how it was used in forensics. Very interesting crimes that happened, and how forensics was used in various crime cases. So the crime cases that are mentioned in this book, Gunyacha, Paulkona, are very famous cases that have happened world over. But the aspect that we have tried to show is the forensic aspect of it, where what kind of forensic investigation happened in the background to prove those cases in the court and identify the culprits. So that is the focus of the book. So basically, you have wrote a CID episode in that. Yeah.
So you can say that. So Yeah. and more so if you want to say it's more about Dr. Salunke than Yeah. about Pradyumna. So it is more about the forensic part Okay. than the crime scene investigation. Yeah, of course. Okay. I was about to talk to you about that because whenever we think of a forensics, we remember the childhood days of CID and this how fascinating it is.